নমস্কার বন্ধুরা, গৌতমের সাথে এই চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকে আবার একটা খুশির খবর নিয়ে চলে এসেছি। একটা নতুন ব্লগ করছে আপনাদের সামনে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন যে রানীগঞ্জ শহর, এই রানীগঞ্জ শহর একটা অতি পুরানো ঐতিহ্যশালী শহর এবং এই শহরের যে রীতিমতো যানজট হতো একটা সময়ে, এখন অবধি সেই যানজট জারি আছে। কিন্তু বড় বড় গাড়ি শহরে ঢোকার সময় কিন্তু একটা আলাদা যানজট হয়ে থাকে। এই ব্যস্ততম আমাদের রানীগঞ্জের প্রাণকেন্দ্র এই এনএসবি রোড, এই এনএসবি রোড রীতিমতো সবসময় প্রায় জ্যাম লেগেই থাকে এবং আজকে কিন্তু সব থেকে একটি ইতিহাস হয়ে রইবে এই রানীগঞ্জ শহরের পার্কিং হতে চলেছে। গত বছর কিন্তু এই রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স থেকে অরুণ ভারতিয়াজি উনি আমাদের সিএম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উনি রিকোয়েস্ট করেছিলেন যে একটি পার্কিংয়ের জায়গা যেন করে দেওয়া হয় এবং এই সেই পার্কিংয়ের আপনাদের সবথেকে বড় আনন্দের এই রানীগঞ্জ শহরের সবচেয়ে বড় আনন্দ আপনাদের আজকে এই দিন আদিবাসী এবং তাদের নৃত্যর মাধ্যমে কিন্তু সমস্ত যারা গেস্ট রয়েছেন তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। গত বছর ঠিক এই মানুষটি কিন্তু সবার হয়ে এই রানীগঞ্জের হয়ে কিন্তু আমাদের এই পার্কিংয়ের একটা জায়গা উনি চেয়েছিলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এবং ওনার কথাতেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু এক কথায় রাজি হয়ে যান। সেই মানুষটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে রয়েছে। नमस्ते मैडम। नमस्ते। प्रेसिडेंट रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मैम हमारे रानीगंज बाजार में अभी थोड़े से पार्किंग को लेके बहुत इश्यूज हो रहा है। तो रानीगंज के बाजार के बीच में एक तो पीडब्ल्यूडी का अनयूज लैंड है। यदि वहाँ पे रानीगंज के जो भी बाहर से कस्टमर्स आ रहे हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था कर दी जाए तो रानीगंज बाजार थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर्स आना बंद कर दिए रानीगंज बाजार में ड्यू टू पार्किंग। अच्छा, मलाई घटक तो इधर में बैठे हैं, वो तो पीडब्ल्यूडी को देख रहा है। सौमित्र मोहन आছো, হ্যাঁ, তো তোমার যদি জায়গা থাকেই পিডব্লিউডি তাহলে ওই জায়গাটাই করে দাও। পিডব্লিউডি ওখানে জায়গা আছে দিদি, 6 যদি বিঘা থাকে 6 বিঘা पार्किंग এ যতটা প্রয়োজন তাহলে একটা পার্কিং করে দাও। लेकिन पार्किंग का पैसा हम नहीं देगा, हम जायगा दे देगा आपको, लेकिन आप लोगों ने बना लीजिए। अमरदा আজকের এই অনুষ্ঠানকে আরো সুন্দর মুহূর্তে নিয়ে যাবেন। উপস্থিত হচ্ছেন আসানসোলের সাংসদ মাননীয় আর এভাবে সুন্দর মুহূর্তে মনোজ কেতশ্রী মহাশয়কে, রূপেশ বাড়ুই মহাশয় উপস্থিত আছেন। সেই দীর্ঘ সকাল থেকে সব শুধু উল্লাস নয়, একতা মুক্ত করার লক্ষ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে আজকে রানীগঞ্জের বুকে এরকম সুন্দর আয়োজনে ভাবে যানজট মুক্ত হোক রানীগঞ্জ শহর। আজকে আমরা অন্য জায়গায় গর্বিত মনে করি, গর্বিত হই যে আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গই হচ্ছে ভারতবর্ষের একমাত্র রাজ্য যেখানে রাজ্যবাসীকে বিনা পয়সা রেশন। मैं इस कार्यक्रम के लिए खास आया हूँ। আমাকে ফোন করলেন, অরবিন্দ বাবু ফোন করলেন এখান থেকে, আমাকে এরা জানালো যে আজকে অনেক দিন হয়ে গেছে আপনাদের डिमांड ছিল। वो कपड़ा व्यापारी हमसे मिलते गए पीछे, तो कहाँ गए वो तारकेश्वर बाबू, इन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी, फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने फॉलो किया, मारवाड़ी समाज ने बहुत जोर दिया कि बहुत दिनों से मांग थी। और जैसा कि मोले बाबू मैजिक मैन ने कहा कि अभी जब देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता या नेत्री यानी रॉयल बंगाल टाइग्रेस बंगाल की ऑनरेबल सीएम इतनी पॉपुलर ममता बनर्जी जी ने यहाँ सभा की थी, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों की, यानी उस समय सारे पार्षद थे, एमएलए थे, एमपी थे, आईपीएस आईएएस ऑफिसर थे, बड़ी गजब की सभा की थी। वहां भी जब साक्षात्कार हो रहा था लोगों से, पब्लिक से, तो लोग कहते थे, उन्होंने आवाज उठाई थी और कहा था
कि इसकी बहुत जरूरत है। एक तरफ प्रोग्रेसिव बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, आसनसोल के विकास की बात होती है, बंगाल के डेवलपमेंट की बात होती है, तो कुछ छोटी छोटी समस्याएं सामने आती हैं जो डेवलपमेंट में कई बार थोड़ा रुकावट डालती हैं। उसमें एक जैम की समस्या भी है, पार्किंग की समस्या है। उन्होंने उसी समय बात उठाई थी ममता जी के सामने, ऑनरेबल सीएम जब भाषण दे रही थी, और वहां पे इन्होंने कहा कि ये होगा, और हम सब थे, मैजिक मैन मलय घटक बाबू भी थे, मैं भी था, और उनका आपकी बात निकली, उनका इशारा हुआ, यानी सही मायनों में इस कार्यक्रम के लिए उनका आदेश हुआ, और वो आदेश हम सबों के लिए अध्यादेश बना। और आज देखिए हमारा सपना या ममता बनर्जी जी की आपकी जो मांग थी, पुकार थी उनके सामने, वो सपना आज साकार होने की कगार पे आ गया। आज फाउंडेशन, और इसके लिए मैं पीडब्ल्यूडी के तमाम अधिकारियों को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, जितने आए हुए हैं लोग, सारे अधिकारीगण, पदाधिकारीगण, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इस काम को जल्द से जल्द करने के लिए। और मुझे उम्मीद है, अभी जिस 2.5 बीघा का जिक्र किया इन्होंने, मुझे उम्मीद है कि अब इसके बाद कुछ और भी होगा, लेकिन एक बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छा फेज अभी स्टार्ट हो रहा है। रानीगंज तो ऐसे ही बहुत मशहूर हो चुका है, अभी तो सुना हमारे फिल्म उद्योग के लोगों ने रानीगंज को तो मिशन रानीगंज कर दिया है। तो मिशन रानीगंज में हम भी शामिल हैं, सब लोग शामिल हैं और यहाँ पे आए हैं। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। सपना साकार हुआ। विगत 1 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की एक मीटिंग दुर्गापुर में एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग हुई थी, उसमें रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से डिमांड रखी थी, जिसका मंत्री साहब ने बताया, मैं दीर्घायु नहीं करना चाहता हूं। वहां हम लोगों ने मांग रखी और हम लोगों की मांग को सुनते हुए उन्होंने तुरंत ये 6 बीघा जमीन मंत्री साहब को कहा कि यदि संभव हो तो दिया जाए, और आज ये कार्यान्वित हो रही है। इसके लिए हम लोग रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समस्त मेंबर, रानीगंज क्लॉथ मर्चेंट, रानीगंज ज्वेलरी एसोसिएशन के समस्त मेंबर और समस्त रानीगंज वासी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री मैडम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि जो उन्होंने रानीगंज के प्रति अपना जो प्रेम भाव वो दिखाया। और आज ये पार्किंग जो सख्त सरकार थी, पूरा रानीगंज जाम में जूझ रहा था, पार्किंग की जगह नहीं थी, वो आज यहाँ पर ये शुरू हो रहा है। इसके लिए हम लोग फिर से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के सारे अधिकारीगण, यहाँ के सारे मंत्री, यहाँ के मेयर, यहाँ के डिप्टी मेयर, हमारे लोकप्रिय चेयरमैन अमर बाबू, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री तापस बाबू, हमारे लोकल वार्ड काउंसिलर, लोकल ब्यूरो चेयरमैन रुपेश भैया सब बैठे हैं, सभी ने पूर्ण रूप से सहयोग किया। मैं जिन्होंने भी इस पे परोक्ष और अपरोक्ष रूप से सहयोग किया इस कार्य को सफल बनाने में, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। पक्ष থেকে আজিজুল সাহেব অনেক অনেক ধন্যবাদ। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम हमारे ऑनरेबल एमपी श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी को धन्यवाद दूंगा कि हमने जो भी बातें हुई कि 29 जून 2022 को रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तरफ से ये पार्किंग का मुद्दा एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में उठाया गया था, जहां पे हमने उनको कहा था कि रानीगंज में प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन दीजिए। दीदी ने तुरंत प्रॉब्लम को समझते हुए हमें सॉल्यूशन में ऐलान कर दिया था, और प्लस मलेदा और एमपी साहब और सौमित्रो जी को कहा था कि तत्कालीन यहाँ पे एक तो पार्किंग बनाई जाए। इसके लिए मैं दीदी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, रानीगंज वासियों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। पर एक बात है कि जब 29 जून को अनाउंसमेंट हुआ तो मुझे कई लोग आके मुझे पोक करते थे, अरे क्या हुआ, मीटिंग में तो आपको बोला गया था पार्किंग कहाँ है, पार्किंग कहाँ है, पार्किंग। तो रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमने जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबको एक चिट्ठी लिखते थे, प्रति सप्ताह मुझे लगता है एक चिट्ठी जाता था मेयर साहब के पास, एमपी साहब के पास, हमारे अमरनाथ जी के पास, हमारे एमएलए साहब के पास, हमारे मलय घटक जी के पास, कि सर प्लीज उन्होंने तो अनाउंसमेंट कर दिया, अब आप थोड़ा इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। किंतु मैं एक शख्स का नाम यदि आज नहीं लूंगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी खराब बात होगी कि एमपी साहब पर्सनली मुझे हर 15 दिन में फोन करते थे कि अरुण जी पार्किंग का क्या स्टेटस है, अरुण जी पार्किंग का क्या स्टेटस है।
और इन्होंने जितना लगन और जितनी मेहनत इस पार्किंग को आगे बढ़ाने में करवाई है, हमारे लोकल एमएलए साहब, मलय साहब, बीएम साहब, अभिजीत जी, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे शहजादा साहब और भी जो भी हमारे उपस्थित यहाँ पे लोग हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसको कर दिखाया और लास्ट में आज हम ये पार्किंग का इनॉग्रेशन देख रहे हैं। मैं फिर से सभी को धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद। ওই জায়গাটা ওদের পার্কিং এর ব্যবস্থা করো। সেই দিনটা আমরা উপস্থিত ছিলাম, আমি ছিলাম, মাননীয় মন্ত্রী ছিলেন, আরো সবাই ছিলেন, বিধান উপাধ্যায় ছিলেন। তারপর মধ্যখানে ব্যাপারটা যে কোনো কারণে হোক আর গতিপ্রাপ্ত হয়নি। আমি আরেকজনের নাম করতে চাই, না হলে অন্যায় হবে। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত, অকৃতজ্ঞতা নেই অধর্ম। অন্তরা আচার্য ম্যাডাম, তিনি যখন পিডব্লিউডি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হলেন ইউটি থেকে, তিনি ব্যাপারটা গতিপ্রাপ্ত করলেন এবং তারপর দেখলাম মাপামাপি শুরু হয়ে গেল, কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। যাই হোক, রানীগঞ্জে প্রচুর কাজ করতে হবে, প্রচুর কাজ বাকি আছে। আমি আপনাদের একটা তথ্য দিই, কিন্তু যানজট আর কয়েকটা দিন পর কিন্তু যানজট একেবারেই মুক্ত হয়ে যাবে এই আশা রেখে। এবং আজকে এখন দেখতেই পাচ্ছেন যে আসানসোলের এমপি এবং স্বনামধন্য অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহাজি এখন বেরিয়ে যাচ্ছেন এবং আমরা আশা রাখবো ভবিষ্যতে কিন্তু আর রানীগঞ্জে যানজট হবে না এবং রীতিমতো শহরের জন্যে শহর এবং রানীগঞ্জ তুমি রানীর মতো থেকো, এই আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা। তো বন্ধুরা, আপনারা ঠিক এইভাবেই দেখতে থাকুন, পাশে থাকুন এবং গৌতমের সাথে ঠিক আপন করে নিয়েছেন যেভাবে, ঠিক সেইভাবেই আপন করে নিবে। এবং বন্ধুরা, আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ।